everyone, welcome to EduSoft. So today we are going to start on a very important topic, that is mail merge. So what we will going to learn in this session, we will going to learn about mail merge, creating main document, data source, merged document, and the very last one, that is printing main document. So before starting on this topic of mail merge, we need to understand what is mail merge. Mail merge क्या होता है? It allows us to generate multiple mail document with same content and variable values. मेल मर्ज से हम क्या जनरेट कर सकते हैं? हम मल्टीपल मेल डॉक्यूमेंट को जनरेट कर सकते हैं जिसमें जो आपका कंटेंट होता है वो सेम होगा और जो वैल्यूज होती हैं वो डिफरेंट वैल्यूज होती हैं. So it is used to generate the multiple mail document with same content and variable values such as names, addresses, different city names, classes, sections or country and many more values. We can say that it is used to create series of same document with multiple addresses. Mail merge is used to create the same document. अगर आपको कोई सेम डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है बट विद डिफरेंट एड्रेसेस, सो व्हाट यू आर गोइंग टू यूज मेल मर्ज. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ यू वांट टू सेंड इनविटेशन टू 50 पीपल, अगर आपको कोई इनविटेशन सेंड करना है 50 पीपल को, तो आप क्या कर सकते हैं? या तो आप 50 इनविटेशन को टाइप कर सकते हैं और एल्स व्हाट यू कैन डू, यू कैन टाइप ओनली वन डॉक्यूमेंट. आपको क्या करना है? आपको सिर्फ एक इनविटेशन टाइप करना है और आपको उस एड्रेसेस जो आपके पास डिफरेंट एड्रेसेस है उसको उस मेन डॉक्यूमेंट में मर्ज कर देना है. सो हियर कम्स मेल मर्ज इज द प्रोसेस ऑफ मर्जिंग द मेन डॉक्यूमेंट विद द डेटा सोर्स. आपके पास एक मेन डॉक्यूमेंट हो गया जो आपको इनविटेशन सेंड करना है. उस इनविटेशन की जो बॉडी होगी वो क्या हो गया? वो आपका मेन डॉक्यूमेंट हो गया. एंड आपको कितने लोगों को सेंड करना था? 50 लोगों को सेंड करना है, 50 पीपल को सेंड करना है. सो ऑल द एड्रेसेस, द नेम्स, ऑल द और द कॉन्टेक्ट नंबर्स ऑफ ऑल द 50 पीपल कम अंडर डेटा सोर्स. तो वो किसके अंदर आ गए? वो डेटा सोर्स के अंदर आ गए. सो व्हेन यू कंबाइन द मेन डॉक्यूमेंट विद द डेटा सोर्स, this is what we called as mail merge. So let's start our session. So this is our LibreOffice. Here you can see writer document, calculator spreadsheet, impress presentation, draw drawing, math formula and base database. What I am going to do, I am going to open writer document. If you want to open a writer document, what you have to do, you have to just double click over the writer document and your writer document will open like this. So this is your writer document. So let's understand what is main document, what is data source, and what is merged document through an example. You can take an example like there are several people in a colony who want to send a request letter to the local authority, to the local municipal authority for the maintenance of old building. So how we can send a request letter to the municipal authorities by the 4 people or we can say by 10 people. So you can see here like this is your main document. You can see, so this is the format of the main document. आपने क्या किया? एक main request letter को type कर लिया. So this is your main document. You can see over here. This is from to executive engineer, Delhi Municipal Corporation, and this is the body of your main document. So what is main document? It is the document that contains the content which is common across all the copies. This is the document whose multiple copies can be generated. If you want to send a request letter, so there are 10 people who want to send a request letter to the local municipal authorities for the maintenance of old building. So what you have to do, you have to create a main document. You have to create one common content. So main document is the document that contains the content which is common across all the copies. If 10 people want to send the request letter, so all the content in all the 10 copies will be same. So this is known as the main document. The main document is used to generate multiple copies. एक आपके पास main document होता है जिससे आप multiple copies को generate कर सकते हैं. Now coming to data source. So what is data source? If we talk about data source, so you can see over here, this is the data source. ये क्या है? ये आपका data source हो गया.
So what is data source? This document contains the variable data such as names of the recipient, or in this case, it contains applicant name, contact number, addresses, mail ID, and zone. So these values are arranged as rows or records in a tabular format. And the very first row contains the heading of each column. इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो आपकी फर्स्ट रो है, what it contains? It contains the heading. So this is the heading of the applicant name. This is the heading of all the contact number. This is the heading for addresses. And this is the heading for mail ID. And this is the heading for zone. So during the mail merge process, these values are merged with the main document. And as many as copies you want, you can generate. मेल मर्ज में क्या होता है कि जो आपका मेन डॉक्यूमेंट है, सो दिस इज योर मेन डॉक्यूमेंट, ये क्या है, ये आपका मेन डॉक्यूमेंट है, एंड दिस इज योर डेटा सोर्स. सो मेल मर्ज इज द प्रोसेस ऑफ मर्जिंग द मेन डॉक्यूमेंट विद द डेटा सोर्स. आपको क्या करना होता है मेल मर्ज में कि जो आपका ये डेटा सोर्स है, इसको आप किससे मर्ज करते हो, आप मेन डॉक्यूमेंट में मर्ज करते हो, and you can generate many copies from here. और यहाँ से आप many copies और as much as you want copies को generate कर सकते हो. Now coming to last one, that is merged document. Merged document क्या होता है? Merged document is generated as the output of the mail merge. मेल मर्ज होने के बाद जो आपके पास फाइनल डॉक्यूमेंट जनरेट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम मेल मर्ज बोलते हैं. So let's understand how we can generate merged document. हम final document को कैसे generate कर सकते हैं? Let's start our session. So what you have to do, you have to go to this file menu. आपको क्या करना है? File menu पे जाना है. Here you can see one option, that is the wizards option. When you go to this option, you can find different options over here. That is letter, you can find document converter, and the very last one, you can find address data source. सो वॉट यू हैव टू डू, जब भी आप फाइल मेन्यू पे जाएंगे, वहां से आपको विजार्ड्स पे जाना है. विजार्ड्स के बाद आपको कहाँ जाना है? एड्रेस डेटा सोर्स, एंड यू हैव टू क्लिक ओवर हियर, दैट इज द एड्रेस डेटा सोर्स पे. जब आप क्लिक करेंगे, अ स्मॉल विंडो विल अपीयर लाइक दिस. सो हेयर आर दी स्टेप्स. यहाँ पे क्या है? यहाँ पे आपको स्टेप्स शो हो रहे हैं. नंबर 1 इज एड्रेस बुक टाइप, एंड नंबर 2 इज कनेक्शन सेटिंग. When on address book type, you can see different options for the external address book. So what you have to do, you have to click over here, that is the other external data source. After this, what you have to do, you have to click over here, that is next. जब आप next पे click करेंगे, then you can come to this option, that is the connection setting. इसके बाद आप कौन से step पे आ गए? connection setting पे आ गए. So here you can see, click the following button to open another dialog in which you then enter the necessary information. So what you have to do now, you have to click over here, that is the settings. आपको क्या करना है? यहाँ पे आपको settings पे click करना है. When you click on settings, तो आपके पास एक another window appear हो जाएगी. Here you can see advanced properties. So here you can see option, that is the database type. Select the type of database to which you want to establish a connection. आपको जिस database से connection को establish करना है between the main document and the data source, आपको उस database को यहाँ पे click करना है. While you click over here, you can find different options, like you can find Oracle JDBC, you can find ADO, you can find Microsoft Access 2007, spreadsheet, DBase, you can find text or MySQL. So there are many other options, but what you have to do, you have to click on the database type which you want to establish the connection between the main document and the data source. So what I am going to use over here, I am going to use a spreadsheet over here. Now what you have to do, you have to click over here, that is the next. आपको क्या करना है? आपको यहाँ से next पे click करना है. जब आप next पे click करेंगे, so you can see different step like the connection setting. आप connection settings पे आ गए, and you can see over here part to the spreadsheet document. जो आपने spreadsheet document type को यहाँ पे सेलेक्ट किया है, अब आपको क्या करना है? उसका पाथ यहाँ पे देना है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक ओवर हियर, दैट इज द ब्राउज ऑप्शन. आपको ब्राउज करना है जहां पे भी आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव किया है. व्हाट यू हैव टू डू, you have to give the path of that document. So I am going to go over here and I am going to select from here, that is the contact file. Now what I am going to do, I am going to open from here.
So this is the path, and after this what I am going to do, I am going to click over here, that is the finish. आपको क्या करना है, यहाँ से finish पे क्लिक करना है. जब आप फिनिश पे क्लिक करेंगे, आफ्टर दिस यू फाइंड हियर दैट इज द स्टेप नंबर 4. आप कहाँ पे आ गए, स्टेप नंबर 4 पे आ गए, जो कि आपके पास क्या है, फील्ड असाइनमेंट. So here you can see, click the button below to open another dialog where you can enter the settings for your data source. अगर आपको डेटा सोर्स के लिए सेटिंग्स को एंटर करना है तो आप किस पे क्लिक करेंगे, आप फील्ड असाइनमेंट पे क्लिक करेंगे. If you don't want to enter any settings, so from here you can see another step, that is the data source title. अगर आपको कोई भी सेटिंग्स को एंटर नहीं करना है अपने डेटा सोर्स के लिए तो आप स्टेप नंबर 5 पे आ जाते हैं, जो कि आपके पास क्या है, डेटा सोर्स टाइटल है. Here you can see different options like embedded this address book definition to the current document, or you can see address book name. तो यहाँ से आप एड्रेस बुक नेम को चेंज कर सकते हैं या आप कोई भी एड्रेस बुक नेम दे सकते हैं. मैं यहाँ पे जो एड्रेस बुक नेम है वो मैं यहाँ पे सेम ही रहने देती हूँ, दैट इज द एड्रेसेस. आफ्टर दिस व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू क्लिक ओवर हियर, दैट इज द फिनिश. इसके बाद आप किस पे क्लिक करेंगे, आप फिनिश पे क्लिक करेंगे. नाउ अगेन जस्ट गो टू दिस व्यू मेन्यू. आपको क्या करना है, व्यू मेन्यू में जाना है. यहाँ पे आप देख रहे होंगे एक ऑप्शन है आपके पास टूल बार्स. सो यू हैव टू गो टू दिस टूल बार्स, और टूल बार्स में आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा, दैट इज द मेल मर्ज. सो यू हैव टू गो टू ओवर हियर, दैट इज द मेल मर्ज पार्ट. आपको क्या करना है, आपको व्यू में जाना है, व्यू से आपको टूल बार्स पे जाना है, और टूल बार्स से आपको कहाँ जाना है, मेल मर्ज में जाना है. नाउ अगेन आपको क्या करना है, आपको व्यू पे जाना है, एंड इन व्यू यू कैन सी वन ऑप्शन ओवर हियर, दैट इज द डेटा सोर्स. आपको इसके बाद कहाँ पे जाना है, आपको यहाँ से डेटा सोर्स पे जाना है. यू कैन गो टू डेटा सोर्स डायरेक्टली बाय द कीबोर्ड शॉर्टकट, जो कि आपके पास क्या होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4. आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4 से भी डायरेक्ट डेटा सोर्स को ओपन कर सकते हैं. फ्रॉम हेयर यू कैन गो टू डेटा सोर्सेस. तो आपको किस पे क्लिक करना है, आपको डेटा सोर्स पे यहाँ पे क्लिक करना है. जब मैं यहाँ पे डेटा सोर्स पे क्लिक करूंगी, यू कैन सी वन ऑप्शन ओवर हेयर, और यू कैन सी वन बार ओवर हेयर, दैट इज द एड्रेसेस बिब्लियोग्राफी, एंड यू कैन सी न्यू डेटाबेस. तो हमारा जो डेटा सोर्स था उसका क्या नाम था, एड्रेसेस हमारे डेटा सोर्स का नाम था. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक ओवर हियर, दैट इज द एड्रेसेस पार्ट. जब भी आप एड्रेसेस पे क्लिक करेंगे आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस यहाँ पे आ गए, दैट इज द टेबल ऑप्शन, दैट इज द क्वेरीज ऑप्शन. सो यू हैव टू गो टू दिस टेबल पार्ट, एंड हियर यू कैन सी दैट शीट नंबर 1. तो आपके पास क्या होगी, जो आपका डेटा सोर्स है वो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा. You can see your data source over here, that is the applicant name. You can see contact number, you can see address, you can see mail ID, and you can see zone over here. So this is your data source. आपको क्या करना था, आपको व्यू पे जाना था, वहां से आपको डेटा सोर्स पे क्लिक करना था. आप डायरेक्टली कीबोर्ड शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, दैट इज द कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F4. सो दिस इज योर डेटा सोर्स एंड दिस इज योर मेन डॉक्यूमेंट. ये क्या है, ये आपका डेटा सोर्स है, और ये क्या है, ये आपका मेन डॉक्यूमेंट है. सो नाउ वी कैन अंडरस्टैंड, और वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन मर्ज डेटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट. हम हमारे डेटा सोर्स को मेन डॉक्यूमेंट में कैसे मर्ज कर सकते हैं. जैसे कि आपको एप्लीकेंट नेम को मेन डॉक्यूमेंट में मर्ज कराना है. सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप. आपको क्या करना होगा, आपको ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा. लाइक आई वांट माय एप्लीकेंट नेम ओवर हियर, जहां पे मेरा कर्सर है. सो मैंने क्या किया, मैंने एप्लीकेंट नेम को सेलेक्ट किया, और मैंने क्या किया, यहाँ से ड्रैग किया और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया. सो यू कैन सी जो एप्लीकेंट नेम है वो आपका मेन डॉक्यूमेंट में यहाँ पे मर्ज हो गया है. उसके नीचे मैं क्या करना चाहती हूँ, मैं कॉन्टेक्ट नंबर को लाना चाहती हूँ. सो मैंने क्या किया, कॉन्टेक्ट नंबर को ड्रैग किया और ड्रॉप कर दिया. उसके नीचे मैं क्या चाहती हूँ, मैं एड्रेस को चाहती हूँ, मैंने एड्रेस को ड्रैग एंड ड्रॉप किया. उसके नीचे मैं मेल आईडी चाहती हूँ, मैंने मेल आईडी को ड्रैग एंड ड्रॉप किया. सो व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर, वी आर मर्जिंग द डेटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट. मैंने क्या किया, एप्लीकेंट नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेसेस एंड मेल आईडी को यहाँ पे मर्ज कर दिया है. नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज द जोन. अब मुझे क्या करना है, मुझे जोन को भी मर्ज करना है. सो मैं क्या चाहती हूँ, मैं यहाँ पे इसको मर्ज करना चाहती हूँ. तो आपको क्या करना होगा, आपको कर्सर यहाँ पे पॉइंट करना है, एंड आफ्टर दिस आपको सेम आपको क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. तो आपके पास क्या आ गया, आपने डेटा सोर्स को मेन डॉक्यूमेंट से मर्ज कर दिया.
सो आफ्टर मर्जिंग दी डेटा सोर्स विद द मेन डॉक्यूमेंट, जब आप मेन डॉक्यूमेंट में डेटा सोर्स को मर्ज कर देते हैं, उसके बाद आपको क्या करना होता है, नाउ यू वांट टू सी कि जो आपके पास फाइनल डॉक्यूमेंट आ रहा है वो किस तरह से आपके पास आपका फाइनल डॉक्यूमेंट शो हो रहा है। आपका मेल मर्ज टूल बार कौन सा है, ये आपका क्या है, ये आपका मेल मर्ज टूल बार है। यहाँ से आपको कहाँ पे जाना होगा, यू हैव टू क्लिक ऑन नेक्स्ट मेल मर्ज एंट्री, आपको नेक्स्ट मेल मर्ज एंट्री पे क्लिक करना है। दिस इज योर नेक्स्ट मेल मर्ज एंट्री। जब मैं यहाँ पे क्लिक कर रही हूँ तो आपके पास जो आपका फाइनल डॉक्यूमेंट है वो आपके पास आ रहा है, दैट इज फ्रॉम समीरा। जो उनका कॉन्टेक्ट नंबर है वो आपके पास शो हो रहा है, सेक्टर आपके पास, जो एड्रेस है वो आपके पास शो हो रहा है, जो मेल आईडी है वो आपके पास शो हो रही है, और जो उनका जोन है वो आपके पास शो हो रहा है। दिस इज मेन डॉक्यूमेंट, जो कि हमने क्या किया है, जब हमने डेटा सोर्स को मेन डॉक्यूमेंट से मर्ज किया है तो जो हमारे पास फाइनल आउटपुट आता है, फाइनल डॉक्यूमेंट आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मर्ज डॉक्यूमेंट बोलते हैं। So you can see other entries from here also. What you have to do, you have to click over here, that is the next mail merge entry. When I click over here, that is the next mail merge entry. यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको सेकंड मेल मर्ज एंट्री शो हो रही है। यहाँ पे नंबर क्या आ रहा है, सेकंड लिखा आ रहा है। सेकंड में हमारे पास कौन है, राहुल। राहुल का जो एप्लीकेंट नेम है, कॉन्टेक्ट नंबर है, एड्रेस है और मेल आईडी है वो आपके पास शो हो रही है। व्हेन यू अगेन क्लिक ओवर हेयर तो आपके पास हिना है, उनका आपके पास एप्लीकेंट नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस और मेल आईडी शो होगी। व्हेन यू अगेन क्लिक ओवर हेयर तो जो आपके पास रीमा है, उनका एप्लीकेंट नेम, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस एंड मेल आईडी शो होगी। So in this way you can merge the data source with the main document, and after this from the mail merge toolbar, while clicking on next mail merge entry, जब भी आप मेल मर्ज टूल बार में नेक्स्ट मेल मर्ज एंट्री पे क्लिक करेंगे, वहां से आप जो भी आपका मर्ज्ड डॉक्यूमेंट है, जो आपका फाइनल डॉक्यूमेंट है, आप वहां से उसको व्यू कर सकते हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू क्लिक ऑन एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट पे एडिट करना है, अगर आपको डॉक्यूमेंट एडिट करना है तो आपको किस पे क्लिक करना होगा, आपको एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना होगा। When you click over here, that is the edit individual document, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप एक इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को एडिट कर सकते हैं। आपके पास क्या है, आपके पास सेम कंटेंट है डिफरेंट डॉक्यूमेंट में। आपने क्या किया, 4 डॉक्यूमेंट यहाँ से क्रिएट किए, चारों डॉक्यूमेंट में क्या है, आपके पास सेम कंटेंट है। लेकिन अगर आपको पर्टिकुलर इंडिविजुअली किसी एक डॉक्यूमेंट में कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप वहां से ये चेंजेस को कर सकते हैं। नाउ हाउ वी कैन सेव इट, अगर मुझे ये जो मेरे डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हुए हैं मुझे इनको सेव करना है तो मैं ये डॉक्यूमेंट कहाँ से सेव कर सकती हूँ, यू कैन फाइंड वन ऑप्शन ओवर हियर, दैट इज दी फाइल। आप फाइल में जाके ये जो डॉक्यूमेंट है आपके, इनको आप सेव कर सकते हैं। और यू कैन सेव लाइक व्हेन यू क्लिक ओवर हियर, दैट इज ऑन दी सेव मर्ज डॉक्यूमेंट। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे सेव मर्ज डॉक्यूमेंट में तो वहां से भी आप ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। जब आप मेल मर्ज टूलबार में जाते हैं तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस मिलते हैं, जैसे कि आपके पास पहला ऑप्शन क्या आता है यहाँ पे, एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। अगर आप सेकंड पे क्लिक करते हैं सो यू कैन फाइंड सेव मर्ज डॉक्यूमेंट। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, जो आपका डॉक्यूमेंट है, जो आपका मर्ज फाइनल डॉक्यूमेंट है, इसको आप सेव कर सकते हैं। अगर आपको प्रिंट करना है तो आप यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। आपको जितनी भी कॉपी, जैसे यहाँ पे आपके पास 4 जो एंट्रीज हैं, आपके पास कितनी एंट्रीज है, आपके पास 4 एंट्रीज है, आपके पास 4 डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स क्रिएट हुए हैं तो आप 4 डिफरेंट डॉक्यूमेंट को यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपको एज अ मेल में कोई मैसेज सेंड करने हैं तो आप यहाँ से मेल मर्ज भी कर सकते हैं। So this is all about mail merge. If you have any doubt in this session, you can ask me. Don't forget to like and subscribe. Thank you so much.